ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. برادران اسلام، واجب التکریم بزرگوں، رب کائنات کا جب احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہان نے ہمیں اس پر نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے، آمین. اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گی. امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے. حضرات گرامی، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے ہر سمت ظلم زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے. ہر ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت، ریا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، مالک کو غلام و آقا سے شکایت، نوکر کو غلام و آقا سے شکایت، اولاد کو والدین سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام و آداب کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے. ہم اس ماں پر ظلم زیادتی کے برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچہ کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچہ کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے، کہ ان کی عزت و احترام و آداب کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں. یاد رکھے کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکت کرتا ہے اور ان پر ظلم زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتی، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم. حدیث شریف میں غور تو کرے، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے. حدیث شریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم والدین کی عزت و احترام و آداب کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے. اگر ان پر ظلم زیادتی اور برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو. میں اپنی طرف سے نہیں کہتی. برادران اسلام، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے ماں قبل میں ایک واقعہ بھی بتائی ہوں. ایک واقعہ بتاتی ہوں. ایک نوجوان اپنی نوکری سے گھر آیا تو بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی. نوجوان کو غصہ آیا، وہ ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی. سخت دل نوجوان نے سجدہ کی حالت میں ماں کے گردن پر پیر رکھا، اس زور سے پیر رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی. پھر ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی. پھر ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے نوجوان اور چاچا جاد بھائی دونوں قبر میں اترے تو چاچا جاد بھائی تو قبر سے صحیح سلامت باہر نکل گئے، لیکن نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے فوراً دبوچ لیا. نوجوان دہشت زدہ ڈر کی وجہ سے چلانے لگا. بہت سارے لوگوں نے اس
को कब्र से निकालने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सके। बहुत सारे लोगों ने उनके लिए दुआ की लेकिन किसी की भी दुआ कारगर न हुई। आखिरकार नौजवान तड़प तड़प कर मर गया। जब नौजवान की बीवी को पता चला तो रो रो कर बयान करने लगी कि दोषी और खताकार तो मैं थी, मैंने ही माँ के खिलाफ जहर उगला था। फिर सारा वाकया बयान किया। आदमी के पास सब कुछ है मगर आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। बिरादरान इस्लाम, मैंने बनी इसराइल की जो आयत तिलावत की थी इसमें रब कायनात इंसान को ताकीद फरमा रहा है कि तुम उस खालिकुस समावात वल अर्ज की पालनहार और बंदगी व फरमा बरदारी करो। फिर फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इस पर इत्तफा नहीं किया बल्कि आगे और इरशाद फरमाया इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन में से कोई या दोनों बुढ़ापे के आलम को पहुंच जाए तो उनको मत कहना और न उनको झिड़को और उनसे खूब इज्जत व एहतराम से गुफ्तगू करना और उनके आगे अजीज़ी की बाजू बिछा देना और उनके लिए यह दुआ करते रहना इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ रब्बे कायनात इन दोनों पर रहमत की बरसात फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे छोटेपन में पाला है। बिरादरान इस्लाम, मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो अपने वालिदैन की खिदमत करके अपने आप को जन्नत के हकदार मुस्तहिक न बनाया हो। बिरादरान इस्लाम, तो आपने फरमाया किस शख्स की नाक खाक आलूद हो, तो आपने फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो अपने वालिदैन में से किसी या दोनों को बुढ़ापे के आलम में पाया हो फिर भी उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत के हकदार मुस्तहिक न बनाया हो। बिरादरान इस्लाम, वालिदैन जिससे नाराज उससे खुदा भी नाराज रहते हैं। मैं हवाले के साथ बताती हूँ, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 12 पर देखो, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की एक रिवायत मौजूद है। वह फरमाते हैं कि जिससे अल्लाह राज़ी उससे वालिदैन भी राज़ी, जिससे अल्लाह नाराज़ उससे वालिदैन भी नाराज़। अगर किसी औलाद से वालिदैन रज़ामंदी है तो रब्बे कायनात इससे राज़ी, मोहसिन इंसानियत इससे राज़ी, सहाबा किराम इससे राज़ी, अर्श इलाही इससे राज़ी, जन्नत व हूर इससे राज़ी, मलाइका इससे राज़ी, जर्रा कायनात इससे राज़ी। अगर नाफरमानी और गुस्ताखी करने वाला हो तो खुदा की भी इस पर लानत, रसूल की भी इस पर लानत, मलाइका की भी इस पर लानत, सहाबा किराम की भी इस पर लानत। एक हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई नेक सालेह औलाद अपने वालिदैन की जानिब मोहब्बत भरी नज़र से एक मरतबा देखे तो हक़ ताला इसको एक मकबूल हज का सवाब देंगे। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर कोई नेक सालेह औलाद अपने वालिदैन की जानिब मोहब्बत भरी नज़र से 100 मरतबा देखे तो क्या इसको 100 मकबूल हज का सवाब मिलेगा? तो आपने जवाब में फरमाया, हाँ रब्बे कायनात की अता और बख्शिश तुम्हारे तसव्वुरात से बढ़कर है। बिरादरान अजीज, हदीस शरीफ में गौर तो करे, सिर्फ मोहब्बत भरी नज़र से देखने का इतना सवाब है। जो अपने वालिदैन को हमा वक्त खुश रखे और उनकी फरमा बरदारी में लगे रहते हैं तो इनका दर्जा रब्बे कायनात के पास कितना बुलंद व अरफा होगा। और एक बात मैं आपके गोशे गुजार कर देना मुनासिब समझाती हूँ कि माँ का हक बाप के हक के मुकाबले में ज़्यादा है। क्यों न हो, रब्बे कायनात जो मकाम माँ को अता किया वह बाप को अता नहीं किया। माँ बच्चों के लिए तकालीफ व मसाइब बर्दाश्त करती है, माँ बच्चों के लिए सर्दी बर्दाश्त करती है, माँ बच्चों के लिए अपनी नींद को कुर्बान कर देती है, माँ बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है जो बाप नहीं कर सकता। इसीलिए नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को बाप पर फौकियत दी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल वालिदैन मन अहक्कु बिहुस्न
हुस्न सहाबा, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, उम्मू का, तेरी माँ। फिर सवाल किया, सुम्मा मन, फिर कौन? तो मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उम्मू का, तेरी माँ। फिर जब तीसरी मर्तबा सवाल किया तो मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। जब चौथी मर्तबा सवाल किया तो मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, उम्मू सुम्मा अबू का, फिर तेरा बाप। इस हदीस में गौर करने से यह बात अज़हर मिन अश-शम्स हो जाती है कि माँ को बाप पर फौकियत हासिल है, इसलिए जो कुर्बानियाँ माँ देती वो कुर्बानियाँ बाप नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि बाप कुर्बानियाँ नहीं देता, वह भी बच्चों के खातिर अपने मुसीबत को अपने सर पर रख देता है और इन बच्चों की दिलकश मुस्कुराहट देखने की खातिर अपना वतन छोड़ता है, परदेश को इख्तियार करता है, रुपए कमा कर लाता है, फिर बच्चों को तालीम देता है, बच्चों को अच्छा लिबास पहनाता है, बच्चों को अच्छा से अच्छा खिलाता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और इन रुपयों से बच्चों का राहत का इंतजाम करता है। बाप बच्चों की खातिर इन तमाम कुर्बानियों को बर्दाश्त करता है, लेकिन याद रखे, बाप की इन तमाम कुर्बानियां माँ के उस वक्त का मुकाबला नहीं कर सकती जिस वक्त माँ तुमको वक्त काट कर जन्म देती है। बिरादराने अजीज, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको दुनिया ही में दिखा देते हैं। जैसा कि मैंने माक़बल में एक वाक़या भी बताई थी। एक सहाबी है, बहुत सालेह इंसान है, जिसका नाम अलकमा है। नमाज की पाबंदी करते हैं, नफलों को कसरत से पढ़ते हैं, ज़कात व सदका अदा करते हैं, अमाल सालेह के पाबंद है, लेकिन इन्होंने अपनी बीवी को अपने माँ पर तरजीह दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि इंतकाल के वक्त जुबान पर कलिमा तय्यबा जारी नहीं होता और रूह गले में अटकी हुई है और बहुत सारे लोग इनके लिए दुआ कर रहे हैं। कुरान की तिलावत की जा रही है, लेकिन रूह जिस्म से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह वाक़या की इत्तला दी गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या इसके वालिदैन जिंदा है? इत्तला मिली कि सिर्फ वालिदा बहयात है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी बुढ़िया अलकमा का तेरे साथ कैसा सलूक था? बुढ़िया ने कहा कि मेरा लख्ते जिगर तो बहुत नेक व साले था, लेकिन इन्होंने अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह दी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुढ़िया, तो इसको माफ़ कर दो। तो बुढ़िया ने कहा कि बुढ़िया माफ़ करने से इनकार कर दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि लकड़ियाँ जमा करो और अलकमा को इसमें जिंदा जला दो। बुढ़िया तड़प गई, ममता जोश में आ गई और कहा कि मैं आप लोगों को शाहिद और गवाह बनाती हूँ, मैंने अलकमा को माफ़ कर दिया, बस इतना कहना था कि हज़रत अलकमा की रूह परवाज़ कर गई। अज़ीज़ाने इस्लाम, हमें इन इबरत आमेज़ वाक़यात से नसीहत हासिल करनी चाहिए कि ये वाक़यात तारीख़ की किताबों और उनके औराक़ में भी मौजूद है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा न बनता न बन अपना तो बन। हमें खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए कि हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से ताल्लुक़ रखता है और हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से भी ख़तरनाक होते हैं। अब इसी चंद बातों पे मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन को राज़ी करने और उनके साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, आमीन। हम शमा यकीन परवाने सुगुल से मोहब्बत करते हैं, हम शमा यकीन परवाने सुगुल से मोहब्बत करते हैं, अजीज़ हमारी राहों से हट हम माँ बाप की इज्जत करते हैं। अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती थी, अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती थी, कितना दर्द था दिल में वो भी जान लेती थी। कहा माँ से ऐ माँ मुझे चांद का एक टुकड़ा ला कर दो, कहा माँ से ऐ माँ मुझे एक चांद का टुकड़ा ला कर दो, ये बात मुमकिन सी थी वो भी मान लेती थी। लफ्ज़े माँ से बुए वफ़ा आती है, लफ्ज़े माँ से बुए वफ़ा आती है, मोहब्बत की शक्ल में जज्बात की सदा आती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।